greetings to all you students. Once again a great welcome to my channel, right? In previous lecture we have started first chapter of class 12th, reproduction in organism, in which we have completed different types of methods of reproduction in microbes, in simple organisms and in few higher organisms, right? We have completed already asexual reproduction, what is lifespan, what is reproduction, what is different types of asexual reproduction, and finally we have completed vegetative propagation, right? But in this lecture, the lecture 2, we are going to discuss sexual reproduction. The topic is already written on the board, right? Sexual reproduction is what? It involves formation and fusion of two opposite male and female gametes, right, which forms zygote. Which forms zygote, and this zygote develops into a complete baby, right? Sexual reproduction is more complex, elaborate and a slow process, and the result, right, the production and the number of production of offsprings by this type of reproduction is absolutely less than asexual reproduction, right? The NCERT deals that sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex. NCERT कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फॉर्मेशन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या तो दो अपोजिट इंडिविजुअल में या फिर सिंगल इंडिविजुअल में, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स जो बाइसेक्सुअल होते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक ही प्लांट में मेल गैमेट भी फॉर्म करता है और फीमेल गैमेट भी फॉर्म करता है फ्लावर में, राइट? और कुछ ऑर्गेनिजम्स भी बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि उनको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है स्टूडेंट्स। उनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उनमें भी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट टेक प्लेस इन सिंगल इंडिविजुअल, राइट? These gametes fuses to form zygote, which develops to form the new organisms. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction, right? Sexual reproduction is much complex than asexual reproduction, because in asexual reproduction only one parent is involved and the genetic material is similar to the offspring as to the parent, right? But in sexual reproduction there is some complications, because genetic material is going to be mixture of both parent, right? So that there is lots of variations arises. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction, because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offsprings that are not identical to the parents or among themselves, right? यही एक पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों के अलग अलग गैमेट फ्यूज करते हैं, तो दोनों ही गैमेट का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा ऑब्वियसली, और वो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करने के बाद जब वो कंबाइन करता होगा तो जरूर कुछ ना कुछ नया बनता होगा, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट है, टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, right? Next, a study of diverse organism, plants, animals and fungi show that though they differ so greatly in external morphology, a plant है, animal है और fungus है, सभी अलग हैं, completely different हैं morphology में, right? Internal structure में भी and physiology में भी, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern, ठीक है?
जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये तीनों किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और एक पीरियड आता है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो हमने बोर्ड पे क्या लिखा है स्टूडेंट, उसको जरा ध्यान दें हम लोग। मैंने लिखा है यहाँ पे कि लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जितनी जिंदगी जीता है, मतलब फ्रॉम बर्थ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, राइट। सो हियर द लाइफ स्पैन कैन बी divided into 3 phases. The first phase is juvenile phase, which is non-reproductive phase, right? This is non-reproductive phase, ठीक है। And this is reproductive phase and this is also non-reproductive phase, right? This is called old age, ठीक है, agreed। यहाँ फर्स्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो जुवेनाइल फेज होता है इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज। ये वेजिटेटिव फेज भी कहला सकता है बिकॉज इस फेज में कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। हेयर नो रिप्रोडक्टिव स्टेप्स आर गोइंग ऑन। इट इज द फेज ऑफ चाइल्डहुड for plant, for animals or for fungi or for any organism. It is the period of childhood when the organism is not ready to reproduce, right? That period of growth, ठीक है, ये पीरियड जो है जो मैच्योरिटी से पहले का पीरियड होता है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी से पहले का पीरियड होता है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जिनकी लाइफ स्पैन कम दिनों की होती है उनमें ये कम टाइम का, छोटे पीरियड ऑफ टाइम का ये जुवेनाइल फेज होता है। जिनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है उनमें ये थोड़ा सा ज़्यादा कवर करता है टाइम को, ठीक है। तो वेजिटेटिव फेज जो होता है या फिर कहिए उसको जुवेनाइल फेज, ये डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट, the end of juvenile phase or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be easily seen in the higher plants when they come to flower, right? जब हम देखते हैं कि ट्रीज में या प्लांट्स में फ्लावरिंग होने वाली है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, मैंने जो प्लांट पॉट में लगाया था या गार्डन में लगाया था अब उसमें फ्लावर आ रहा है, ठीक है। तो वो फ्लावरिंग से पहले का जो पीरियड था उनका, जब हमने लगाया था अपने प्लांट को, है ना, बीज के फॉर्म में जब हमने उन्हें सीडेड किया था और तब से लेके अब तक जब तक उन्होंने एक भी फ्लावर नहीं दिया था तब तक का पीरियड उनका कहलाएगा जुवेनाइल फेज। एंड द फर्स्ट फ्लावर and the beginning of flowering in that plant represents its reproductive phase, which is second phase of life, right? तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड फेज हो गया जब बिगनिंग ऑफ फ्लावरिंग होने लगी, ठीक है। और ये पीरियड भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, ठीक है। ये पीरियड भी सभी ऑर्गेनिजम्स में और खासकर लार्जर ऑर्गेनिजम्स में, एडवांस ऑर्गेनिज्म में भी डिफर करता है, ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering, right? Plants, the annual and biennial shows clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase, ठीक है। अब senescent phase क्या है? Senescent phase जो है ये old age हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। ये एक तरह से जो ओल्ड एज हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे
यह भी जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव फेज ही होगा, ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव फेज है, because in this phase the capacity of the organism to reproduce is going to be less and at final age it is completely banned and completely absent to these organisms which are going to become senescent, right? तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ओल्ड होता है या सेनेसेंट होने लगता है तो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी घट जाती है या फिर नील हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेनेसेंट फेज हो गया। तो ए फ्यू प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने कहा बायएनियल, एनुअल एंड पेरेनियल, 3 प्लांट के बारे में यहाँ पे नाम लिया, ठीक है। तो वी विल सी दैट what is annual, what is biennial and what is perennial plants, right? ठीक है, तो annual क्या होता है? True annuals are plants that germinate, flower, set seeds and die all in one season. हमने इनको लगाया और ये बड़े हुए और एक सीजन में, किसी खास सीजन में इन्होंने फ्लावर दिया, फ्रूट दिया, व्हाटएवर, एंड उसके बाद फ्लावर एंड फ्रूटिंग के बाद ये डाई कर गए, मर गए, और अब ये सेकेंड सीजन में नहीं निकलेंगे खुद से। हाँ, इनके बीज जो गिरे होंगे उससे भले न्यू प्लांट निकल जाए, है ना, इट इज द चांस, but that flower will not going to be survive again because that plant is died already, because these are annual plants. Annual plants do not survive 2 seasons. They only survive and fruit flowering and fruiting and seed setting only occurs once in life, only in one season. These are called annual plants, right? Example marigold. अब हम सेकेंड के बारे में देखते हैं कि biennial क्या होता है, right? Biennial, any plant that completes its life cycle in 2 growing seasons. ठीक है, any plant that completes its life cycles in 2 growing season, ठीक है, 2 सीजन जब ग्रो कर जाए तब तक। During the first growing season, biennial produces root, stem and leaves. And during the second, they produce flower, fruit and seeds and then die. Example, sugar beet, beetroot जिसे कहते हैं, चुकंदर, right? And carrot, etc. are biennial plants. And perennial क्या होगा स्टूडेंट? तो बायएनुअल हमने देखा और एनुअल हमने देखा। बायएनुअल में, एनुअल में हमने क्या देखा? दे रिक्वायर ओनली 1 सीजन, एग्जाम्पल मैरीगोल्ड। बायएनुअल रिक्वायर्स 2 सीजन, दैट इज कैरोट एंड बीटरूट, एंड थर्ड वन इज पेरेनियल, विच a perennial plant or simply perennial is a plant that lives more than 2 years. ठीक है, ये 2 साल से ज्यादा की जिंदगी जीते हैं। ये कोई भी प्लांट हो सकता है जो 2 साल से ज्यादा जीता हो, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता हो, वो पेरेनियल कहलाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये प्लांट्स जो होते हैं क्लियर कट दिखाते हैं कि कब इनका वेजिटेटिव फेज है, कब इनका रिप्रोडक्टिव फेज है और कब इनका डेथ फेज आ गया, दैट इज सेनेसेंट फेज, राइट। तो तो ये हमने देख लिया। और जो पेरेनियल होते हैं उनमें भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जैसे कि ये काफ़ी पुराना जब हो जाएगा पेरेनियल, तब इनका सेनेसेंट फेज आता है और ये इनमें रिप्रोडक्टिव फेज काफ़ी टाइम तक होता है और इनमें वेजिटेटिव फेज भी इनका छोटा होता है, ठीक है। Next, a few plants exhibit usual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. ठीक है, जो बैम्बू ट्री है, हमने जो बैम्बू यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बैम्बू के प्लांट्स को, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें जो सीड होती है, सीडिंग होती है, तो ये काफ़ी टाइम के बाद आता है और लाइफ में केवल एक ही बार आता है। बैम्बू में जब सीड आएगा देन आफ्टर इट विल डाई, राइट।
तो ये बैम्बू की कहानी हो गई। ये केवल एक बार अपने लाइफ में फ्लावरिंग करते हैं और वो फ्लावरिंग इनका करीब 20, 30, 40, 50 ईयर्स के बाद भी हो सकता है। ठीक है, 50 to 100 ईयर्स के बाद हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड देन आफ्टर दे डाई, राइट। Next you are seeing that Strobilus kunthiana or Neela Kuranji flowers once in 12 years. As many of you would be knowing that this plant flowered during September-October 2006, right? This is Neela Kuranji. You are looking here that this plant also going to be flowers once in 12 years, right? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये नीली पहाड़ी पे पाया जाता है। जब ये उगता है और फ्लावरिंग होती है इसमें, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा पहाड़ जो है, पूरा माउंटेन ब्लू हो गया। ठीक है, ब्लू माउंटेन लुक लगता है ऐसा। ठीक है, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस प्लांट का नाम याद रख लेना है, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, राइट। नेक्स्ट, in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। ठीक है, तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स के केस में जो इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जब इनमें आने लगता है, उस समय इनमें बिहेवियरल एंड फिजिकल चेंजेस दिखाई पड़ने लगते हैं। मतलब जुवेनाइल फेज अलग तरह का दिखता है एंड रिप्रोडक्टिव फेज अलग तरह का दिखने लगता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? यस, यू कैन। मैच्योर इंसान दूसरे अलग तरह के दिखते हैं और जो बच्चे होते हैं वो अलग तरह के दिखते हैं, है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग में भी कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, राइट। अमॉन्ग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर? क्या चिड़िया हमेशा अंडा देती रहती है पूरे साल? और इज इट अ सीजनल फेनोमेनन? और क्या ये सिर्फ सीजन पे होता है? What about other animals like frogs and lizards? However, birds in captivity, as in poultry farm, can be made to lay eggs throughout the year. जो पोल्ट्री फार्म में होती हैं उनको इस तरह से उनके अंदर चेंजेस लाया जाता है कि वो थ्रू आउट द ईयर एग देते रहती हैं। ठीक है ना। बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। ठीक है, जो भी ओविपेरस एनिमल होते हैं वो सीजनली ही एग को रिलीज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, the females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase, right? जो भी फीमेल्स होती हैं, मैमालियन फीमेल्स होती हैं, प्लेसेंटल फीमेल होती हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद उनके ओवरीज में चेंजेस आता है, एग्स रिलीज होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो ये इस तरह का चेंजेस देखा जाता है उनमें, तो वो एक रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग कहा जा सकता है, राइट। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जो प्राइमेट नहीं है, ठीक है, नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शीप, rat, deer, dog, tiger, etc. Such cyclic changes during reproduction are called oestrus cycle. ठीक है, इनके अंदर चलने वाले साइकिल को ओएस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। Whereas in primates, monkeys, apes and humans, it is called menstrual cycle. ठीक है, तो ये सभी, ये जो फेज है ओएस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है। एन ओएस्ट्रस साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ फीमेल विच स्टार्ट्स आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी।
ठीक है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तब जाके फीमेल्स में ये ओएस्ट्रस साइकिल शुरू होता है. At this moment, the reproductive system is in optimal environmental condition, close to ovulation and able to produce child, right? Oestrus cycle represents the beginning of reproductive maturity of that female, right? Next one is, तो यहाँ पे कुछ example देख लेते हैं. As for example, bear, cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, cat, wolves, foxes, rabbits, etc. They all shows oestrus cycle. ठीक है. Next है कि whereas in primates like monkeys, apes and human, it is called menstrual cycle. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि oestrus cycle क्या है और menstrual cycle क्या है. ठीक है. Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit this type of cycle. ठीक है. Such cycle only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore seasonal breeders. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वाइल्ड हैबिटेट में रहते हैं इस तरह के साइकिल जो होते हैं ओएस्ट्रस साइकिल वो सीजनल होते हैं. इस वजह से इनके ब्रीडिंग का वही सीजन कहलाता है एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि विच आर सीजनल ब्रीडर्स एंड विच आर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, राइट. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. Okay? तो अब हम यहाँ पे क्लियर हो गए कि कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या है और सीजनल ब्रीडर्स क्या है, राइट. मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है. इस समय इस वक्त जो है वो 28 डेज के डिफरेंस पे जो एंडोमेट्रियम है वो एक्सपेल्ड आउट होता है बॉडी से कंटेनिंग ब्लड मटेरियल, राइट, एंड एग ऑल्सो. दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू that all we grow old. अब हम old age की बात करने लगे. That is senescent phase, right? That we all grow old if we live long enough is something that we recognize. बाल पक जाते हैं, दाढ़ी पक जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, झुक के चलने लगते हैं, स्किन्स रिंकल्ड हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये बूढ़ा होगा, ये बूढ़े हो गए. ठीक है. ओल्ड एज क्लियर कट दिखाई देता है. बट वॉट इज मीन्ड बाई ग्रोइंग ओल्ड? क्या पता चलता है ग्रोइंग ओल्ड होने से? मैच्योरिटी बढ़ जाती है, सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ का कोई भी डिसीजन हम अच्छा ले सकते हैं. ग्रोइंग ओल्ड का मीनिंग यही होता है. द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. बट साइंस के लिए बायो कहता है द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज. मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव फेज. Once again, the life is moving from childhood to the oldhood through reproductive phase, right? The reproductive phase is the middle period which makes the individual to produce child, right? Next, there are concomitant changes in the body like slowing of metabolism during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. ठीक है. ओल्ड एज के बाद हम फिर बच्चे नहीं बन जाएंगे, फिर हमारी डेथ हो जाएगी एंड उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, in both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. ठीक है. पॉइंट यहाँ पे यही बनता है, how these three phases are changing in the life. During lifespan, these three phases are coming and going. How? That is only possible due to hormones, right? Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organism.
ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस आता है, इंटरेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम हाइपोथैलेमस, फ्रॉम रिप्रोडक्टिव गोनाड्स, all these hormones play very important role in different phases of our lifespan. Next, the topic leads us, that is events in sexual reproduction. तो sexual reproduction में क्या क्या event होते हैं according to NCERT, ठीक है। तो sexual reproduction है क्या? Formation and fusion of gamete which forms zygote, and from zygote the development of embryo, and from embryo the development of fetus, and then complete baby is are all these included in events in sexual reproduction, right? तो यहाँ पे sexual reproduction में ये सारे events आएंगे जिनको कि हम आगे डील करने वाले हैं, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, after attainment of maturity all sexually reproducing organism exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है ऑर्गेनिजम्स में, और ये फेजेस जो हैं वो अलग अलग फेजेस में दिखते हैं, ठीक है, जिनको हम लेक्चर नंबर 3 में डील करेंगे, राइट। देन तब तक के लिए चलिए बाय।